Where are we? So, first of all, anything we started, we do, or we think there should be proper, clear objectives. So, the objectives of this session is to understand the fundamentals of product sustainability. We will delve into the core principles of product sustainability, exploring its environmental, social, and economic dimensions. The second objective is to explore sustainable design practices. We will discuss key principles of designing products with sustainability in mind. And the third objective of this session is consideration throughout the supply chain. Our training will highlight the significance of sustainable sourcing, fair labor practices, and minimizing environmental impact across the entire supply chain. So there will be fourth one, but I didn't mention it here. It's about the compliance and the standards. We will discuss something about that as well. So if we continue, so what are the global environmental challenges? So first of all, we need to introduce to environmental challenges. So our planet faces ethical challenges, including climate change and biodiversity loss, demanding our attention and action. Understanding these environmental issues is the first step toward create meaningful solutions. Because if we don't know the things and if we don't know the problem, how it is possible to find out the solutions? So we first of all we need to understand the problem. And the second thing is interconnected nature of the challenges. So this is not something that this issue is separate, this is separate, we can solve the single one and the problem will be solved. So all these issues are interconnected. So these challenges form a complex web actually, affecting not only the environment but also societies and businesses. Recognizing the interconnected nature allows us to address these issues comprehensively. The third thing is relevance to the business. Yes. So businesses are directly impacted, facing risks like supply chain disruptions and evolving regulations. Exploring the intersection of environmental challenges and business operations is crucial for adaptation. And next is urgency of sustainable practices. Yes, actually there is an urgency and it's very serious. The urgency for sustainable practices is clear and strategic response to mitigate risks and contribute positively. Embracing sustainability is not just a choice, it's a necessity for the well-being of our planet and future generations. And next thing is shared responsibility. So we all have the shared responsibility. We all have the shared responsibility to contribute to positive change and build a more sustainable future. Recognizing our collective role, foster a sense of shared commitment and collaborative efforts. Improvements, suggestive surveys from our corporate side, and we are, as a Hitachi team members, highly engaged to support this initiative in our organizations. There was a open HSC position in Hitachi and I applied at that, but nobody responded. Okay, anyhow, that's good. So the things you are doing, your organization is doing, that was great, and you explained well. Thank you for your participation. Okay, so if so the overview of the modules. So before we dive into today's modules, let's take a moment to set the stage. We have 4 modules for today's session. So module 1 is fundamental of the product sustainability. Module 1 lays the foundation, introducing us to the fundamentals of sustainable products. It's about understanding why sustainability matters and the initial steps we can take. And moving to module 2, we will dive into the principles of sustainable product design. This module explore how the choices we make in design can significantly impact the environment and society. In module 3, our focus shifts to the supply chain. We will go through the complexities within supply chains and explore strategies for infusing sustainability throughout the crucial aspect. And finally,
Module 4 take us into the realm of regulatory compliance and standards. We will discuss the importance of following rules and gaining certifications to ensure our Excuse practices me, sir. align with sustainability goals. Yes, please. Sorry to disturb you, sir. If it is this introduction is in Urdu, it will be better, sir, because I think all of the Okay. candidates are from Pakistan. Okay, no problem for that. So in English it is done. I will summarize in Urdu for every slide. No problem. Yes. I will It so will be we better have to get the idea Okay, in our own language. Okay, fine. Thank you. Thank you for Thank your suggestion. So हमारे पास 4 मॉड्यूल हैं. पहले मॉड्यूल में हम फंडामेंटल्स पर जाएंगे. हम देखेंगे कि कैसे जो है हम प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी क्या बला है और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं. सेकंड जो हमारा मॉड्यूल है वो है सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिजाइन प्रिंसिपल्स. उसके अंदर हम की प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो डिजाइन के वक्त में हमें कंसिडरेशन करनी जरूरी है डिजाइन फेज पर, कि एक्चुअली डिजाइन के अंदर हम ऐसा क्या करें कि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ चले जाएं. जो हमारी प्रोडक्ट है उसका लाइफ साइकिल बड़ा हो जाए, वेस्ट कम जनरेट हो जाए, हम लीन से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ चले जाएं. समथिंग लाइक दैट विल बी डिस्कस्ड इन दैट मॉड्यूल नंबर 2. In the third module, supply chain consideration, we will look the things about supply chain. Okay, like what are the strategies and how are we onboarding people? How लोग कैसे काम कर रहे हैं, हम supplier कैसे choose कर रहे हैं, वो कौन से suppliers हैं, इस तरह की चीजें होंगी. और the fourth module is about take us into the realm of regulatory compliance. means हम बात करेंगे कि आप जिस भी मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का कानून क्या है, उस कानून के असरात क्या हैं, और स्टैंडर्ड्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो खुद को सर्टिफाई करती हैं, लाइक ISO 14001 है, 45001 है, एंड देयर आर टू मेनी सर्टिफिकेशंस. सो उनका क्या रोल है एंड हाउ दे दो स्टैंडर्ड्स help us and how they create some challenges us as well. मीनिंग वो हमारी मदद कैसे करते हैं एंड वो हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी लेके आते हैं. सिर्फ मदद नहीं करते हैं, वो साथ में कुछ मुसीबतें भी लेकर, इन फूलों के साथ थोड़े थोड़े कांटे भी आते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ. सो ये था हमारा मॉड्यूल का वो. So module 1, fundamentals of product sustainability. In this module we will go to lay the groundwork for our journey into the sustainable practices. Just like learning the basics of any new skill, understanding the fundamentals is key. It's a key to making informed decisions and driving positive changes. यानी कि अगर आपको बुनियादी चीजें पता होंगी तो आप अच्छा फैसला करने में ये चीजें आपके लिए हेल्प कर सकेंगी. अगर आपको फंडामेंटल्स बुनियादी चीजें ही पता नहीं है, जैसे किसी भी साइकिल की किसी भी चीज की बात करते हैं, लेट्स से एन एग्जांपल, आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो अगर आपको कोई बंदा वो यही नहीं समझाता है कि यार ये पैडल है, इसको ऐसे घुमाने से ये चैन चलती है, चैन चलेगी तो पीछे से जो फ्लाई व्हील घूमेगा उसके साथ आपका पिछला व्हील मूव करेगा, ये हैंडल है, यहाँ पर बेल लगी है. तो ये फंडामेंटल्स हैं. आप उसके बाद फिर डिसीजन करते हैं कि मुझे कहाँ जोर लगाना है, कैसे जोर लगाना है और फिर आगे कैसे चलाना है. सेम लाइक दैट सेम गोज फॉर द प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी. हमें इसकी फंडामेंटल्स जाननी है ताकि हम अच्छा डिसीजन और एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकें. सो इंट्रोडक्शन टू someone said something. Okay, anyhow, so introduction to product sustainability. Product sustainability means making things in a way that does not harm the environment a lot. It's about creating products that are good for the earth, people, and can be used for a long time without causing problems. This includes using resources wisely, being kind of the planet, and thinking about how things are made. For example, a sustainably made t-shirt could be produced using materials that are easy on the environment, made in a fair working conditions, and designed to last to long time. यानी इसका मतलब ये है कि हमें सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, ये चीज है कि हमें जो है इस तरीके से चीजें बनानी हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज भी ना करें और जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो बहुत देर तक चलता भी रहे, और जो लोग उसको बना रहे हैं उनको भी बड़ा फेयरली ट्रीट किया जा रहा हो. ऐसा नहीं हो कि मतलब हमने क्या किया जो था वो तो बहुत अच्छा दिया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल भी लिया,
सफाई भी बहुत रखी, क्वालिटी भी बहुत रखी, मगर जिन लोगों को वेजेस पे करने थे उनका हक मार लिया, उनसे एक बंदे से 5 बंदों का काम लिया और पैसे उनको दिए ही नहीं। सो ऐसा नहीं, प्रैक्टिस सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अबाउट ओनली द एनवायरनमेंट, इट्स अबाउट एवरीथिंग, planet, people, environment, it want to save, it want to help, everything. So the second thing is the importance of sustainable practices, because हमने ऊपर बात की कि these are the practices, these are the things we should be taking care of for the sustainable products. तो उसके बाद वो कह रहा है कि अब what are the importance of sustainable practices. So sustainable practices are crucial because they help us take care of the planet and ensure a better future for everyone. When we use resources wisely, reduce waste, and make products in eco-friendly ways, we protect the environment. This not only benefits nature but also ensures that future generations can enjoy a healthy and thriving planet. Sustainable practices also contribute to fair working conditions, ethical sourcing of materials, and support for local communities. By adopting sustainable practices, we create a positive impact on the world, make it a better place for everyone. In Urdu, if I would like, if I explain it, so इसका मतलब ये है कि आपको जो है जब काम करना है तो रिसोर्सेज को बड़ा वाइजली यूज करना है, ऐसे नहीं करना है दो मतलब दो से यूज कर लिया तीसरा जाया कर दिया, ये काम नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऐसा इन्वायरमेंट चीज बनानी है जो एक तो चले बहुत लंबे अरसे तक, दूसरा जब उसकी लाइफ सर्विस लाइफ या यूजेबल लाइफ खत्म होती है तो वो किसी ना किसी जगह ठिकाने लग जाए, ऐसा ना हो कि जमीन के ऊपर कचरे की सूरत ले जाए। तीसरा ये कि जो आप मटेरियल ले रहे हैं ठीक है वो अच्छा ले रहे हैं मगर वो लीगली सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो किसी का चोरी कर लिया जाए, किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उसे सस्ते दामों में ले लिया जाए, ऐसा भी नहीं करना है। इथिकल सोर्सिंग पे जाना है आपको। और लोकल कम्युनिटीज हमें ना ये जो सस्टेनेबिलिटी है इट आस्क्स अस टू गो फॉर द सपोर्ट द कॉटेज इंडस्ट्री एक्चुअली। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए। जैसे हम चाइना की अगर बात करते हैं लेट से, तो अलीबाबा ने क्या किया है, अलीबाबा ने क्या किया है, कॉटेज इंडस्ट्री उठा दी है। आप अपने मुल्क में देखें जो सेफ्टी पिन्स आती हैं पाकिस्तान में इवन, या बल्कि पूरी दुनिया में जाती होंगी फॉर श्योर, तो वो क्या है, वो उनकी कॉटेज इंडस्ट्री, किसी बंदे ने घर में छोटी सी मशीन लगाई और सेफ्टी पिन्स बना रहा है, किसी ने घर में छोटी सी मशीन लगाई वो घड़ियों के सांचे बना रहा है, किसी ने घर पे मशीन लगाई है वो घड़ी बना रहा है। तो क्या उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को उठाया और उससे उन्होंने 30 साल के अंदर चाइना का बिल्कुल नक्शा ही बदल दिया। आप अंदाज़ा लगाएँ, मैं आई वाज़ इन कराची और मुझे किसी ने बताया कि जो एचबीएल प्लाज़ा है कराची का, तो इन 1970s लेट 70s जब वो चाइनीज़ ने वो प्लाज़ा देखा कि इतनी ऊँची बिल्डिंग बनती है, तो वो बड़े हैरान थे। चाइनीज़ वर शॉक्ड, दे वर मतलब सरप्राइज़ कि मतलब इतनी ऊँची बिल्डिंग बनी कैसे होगी? ये हाल था उनका। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। जब हम जो एमिरेट्स एयरलाइन है इस वक़्त जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है, उसको पहले जो जहाज़ थे ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए वो पीआईए ने लीज़ किए थे। बट क्या हुआ इन द एंड? हमने वो फेयर प्रैक्टिसेस नहीं अडॉप्ट की, तो सिर्फ एनवायरनमेंट का बेड़ग नहीं किया, हमने पूरे मुल्क का, पूरी इकोनॉमी का, पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। वो लोग जो हमसे हमारी तरफ देख के सरप्राइज़ थे, वो लोग जिनको हम लीज़ कर रहे थे चीज़ें, वो हमसे हज़ार कदम आगे चले गए, हज़ार गुना आगे चले गए एंड वी आर स्टिल देयर बिकॉज़ वी आर नॉट डूइंग थिंग्स एथिकली। हम एथिकल सोर्सिंग से जो है ना भाग गए। लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट ही नहीं किया। हम मतलब घर से ये सोच के निकलते हैं कि चीज़ जापान की लेके आएँगे या ताइवान की लेंगे या चाइना की ले आएँगे। पाकिस्तानी बनी देख के सोच लेते हैं ये अच्छी नहीं होगी। सो व्हाई? व्हाई इज़ दिस? उसकी रीज़न है क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो फेयर प्रैक्टिसेज़ पे काम ही नहीं कर रहे। वो चीज़ बनाते हुए ये ख़्याल ही नहीं रखते हैं, अगर हमें कोई चावल का ऑर्डर मिल जाता है बाहर से कि आप इम्पोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट करें अपने मुल्क से हमारे मुल्क में, तो हम उसमें गंद मिला के भेज देते हैं। हम लाल मिर्ची भेजते हैं तो उसमें बूरा डाल के भेज देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हर्ट्स पाकिस्तान। हर्ट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, एनीवन हू विल गो ऑन दिस वे विल बी हर्ट। क्योंकि जैसा करोगे टिट फॉर टैट वाला फॉर्मेट है। सो ओके, दिस वाज़ द सेकंड थिंग एंड द थर्ड थिंग इज़ अबाउट connection between sustainability and business success. So sustainability help businesses succeed by doing things that are good for the planet and people. When companies use resources wisely and care about the environment, they become trusted by customers. This trust can lead to more business. For example, a company that makes a product in a way that does not harm the nature
might attract more customers who care about the earth. So being sustainable not only help our world but also make business more successful in the long run. मैं इसको अगर उर्दू में मजीद एक्सप्लेन कर सकूं तो मैं कैसे कहूंगा कि देखें, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट करते हैं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, इट्स बीन 5 years here in Nokia Networks. I joined in January 2019 and it's January 2024. 5 साल गुजर गए मुझे और मैं बिल्कुल इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। क्यों साथ हूँ? दे ट्रीट अस विद रिस्पेक्ट। वो हमें इज्जत देते हैं, टाइम पे हमारी सैलरी आती है, वो हमारे वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल करते हैं। सो व्हाई वुड आई लीव? मेरे पास कोई अदर ऑप्शन ही नहीं था। अगर कोई अच्छा मिलेगा, मतलब रिसेंटली आई हैव चेंज्ड द माइंड एंड नाउ आई वांट टू गो अब्रॉड बिकॉज़ द करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ माय कंट्री. So this is something else. But if we talk about the organization itself, I am talking specifically for Nokia. So it's really a good place to work at. Actually, मतलब यहाँ आके मुझे पता चला कि ऐसी भी दुनिया में काम किया जाता है जहाँ पे whatever but only in Pakistan. When they will be in China, they will behave differently. So anyhow, so this was it. जब आप बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, आप रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, वेस्ट अवॉइड करते हैं, आप लोगों को फेयरली ट्रीट करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस. ओके, so this was it and the next slide. So हम बात करेंगे, we will discuss key principles of product sustainability. So key principles in sustainability practices include life cycle assessment. In life cycle assessment, we will discuss life cycle key principles include life cycle assessment, circular economy, and the third thing is social responsibility. So if we talk about the life cycle assessment, so life cycle assessment involves analyzing the environmental impact of the product from its creation to disposal, helping identify areas for improvement. And the second thing is about circular economy. I just discussed this one in my first session as well. So currently, most of the industry is working on lean production model, just getting the resource, making some products, using that product, and simply throwing it up. So in circular economy, the circular economy in a circular economy, the focus is on designing products for durability, repair, and recycling, aiming to create a closed loop system that minimize waste. And the third thing is social responsibility. Actually, social responsibility involves ethical practices throughout the supply chain, such as fair labor conditions and community support. तो मैंने जो बात की वो ये कि अगर हम की प्रिंसिपल्स, जो कवानीन हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिन पे बात करना, वो 3 हैं. उन पे हम बात करेंगे कि हमें पहले देखना है कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होगी, फिर हमें सर्कुलर इकोनॉमी पे बात करनी है और फिर हमें बात करनी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. तो जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर चीज़ को नोट किया जाए कि जब मैं रिसोर्स को या किसी भी चीज़ को पकड़ूंगा उसको प्रोसेस करने के लिए, वहां से लेके उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट बना के उसको यूज करने के बाद जब वो डिस्पोज करने का टाइम है कि तब तक ये किन किन स्टेजेस से गुजरेगी, क्या क्या हालात होंगे. तो इन सब चीज़ों को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल असेसमेंट इन अ सर्कुलर इकोनॉमी. तो जैसे मैंने आपको बताया, करंटली जो ज्यादातर कंट्रीज हैं वो काम कर रही हैं लीन मॉडल पर. लीन क्या है कि जनाब एक दरख्त काटा, उसको फैक्ट्री भेजा, उसके पेपर बनाए, पेपर पे एक लाइन लिखी, 4 लाइनें लिखी, उसके बाद उसको अगले दिन फाड़ा, डस्टबिन में डाल दिया. सो दिस इज कॉल्ड लीन इकोनॉमी. तो अब हमें बात करनी है सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहती है. वो कहते हैं, वो फोकस करते हैं कि जो चीज हम बना रहे हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए. ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, वो चीज़ ऐसी बना के दें कि वो बार-बार रिपेयर हो सकती हो। ऐसा नहीं है कि बस वो बनी तो रिपेयर ही ना हो सकती हो। और उसके बाद जब वो बिल्कुल खत्म हो जाए, हम सोचें कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता इसके साथ, तब भी वो साइकिल होके कुछ और बना दे। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो कि वो इधर से रिसोर्स पकड़ा, पेपर बनाया, लिखा और फेंक दिया। ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो यूज़ होके दोबारा यूज़ हो गए, रिपेयर हो गए, फिर यूज़ हो और यूज़ होने के बाद रिसाइकिल हो के अगर वो कुछ कम नहीं बन सकता तो वैसा नहीं बन सकती तो कुछ कम और बन जाए। जस्ट लाइक आई वाज़ वाचिंग अ वीडियो अबाउट द कोकोनट वेस्ट. वो जो गिरी के खोपरे के ऊपर बाल से होते हैं, आज मैं देख रहा था. सो इन आई डोंट नो व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वाज़. मगर वो क्या कर रहे थे कि वो नॉर्मली तो उसको फेंक देते थे और वो मेरे ख्याल से बायो वेस्ट था, खत्म हो जाता होगा, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, एक इंडस्ट्री बना दी है. वो उसके ऊपर से वो बाल उतारते हैं, बाल उतार के उसको तो वो ले जाते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, प्रोसेस करते हैं,
प्रोसेस करके वो क्या कर रहे हैं, उससे वो हार्ड शीट्स बना रहे हैं, गत्ता बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं डिलीवरी के लिए। और साथ में वो इतना मतलब जो है फर्टाइल है कि उसको वो घरों के अंदर मिट्टी के तौर पे भी उसको डिलीवर भी कर रहे हैं, बिज़नेस बना दिया कि अगर आपने घर पे पौधे लगाने हैं तो मिट्टी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्डर करें, वो कोकोनट की बनी हुई खुश्क शीट गत्ते की तरह आपके घर आ जाएगी। उसपे जैसे आप पानी के 2 कतरे डालेंगे 4, तो वो फूल के बिल्कुल एक फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल बन जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी। तो द नेक्स्ट थिंग इज़ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सो इट इन्वॉल्व्स एथिकल प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द सप्लाई चेन। यानी कि मैंने जैसे कहा कि सिर्फ वो चीज़ें अच्छी नहीं लेनी है, क्वालिटी अच्छी नहीं करनी है, आपको लोगों को फेयरली ट्रीट भी करना है और कम्युनिटी को सपोर्ट भी करना है। सो वी विल वेट, अज़ान हो रही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला हौला इल्ला बिल्लाह अलिyyil अज़ीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिyyil अज़ीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिyyil अज़ीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिyyil अज़ीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा। So, okay. The second thing is how these principles apply to real world scenario. मतलब हमने की प्रिंसिपल्स पे बात कर ली। अब वो जो प्रिंसिपल्स है उनको एक्चुअल में किया कैसे जा सकता है, उसकी भी कोई बात होनी चाहिए ना। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि आप लाहौर चले जाएं, कैसे जाना है ये भी बताना जरूरी है। सो इन एवरीडे सिचुएशंस दीज सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स गाइड बिजनेसेस टू मेक मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड socially responsible choices. For instance, like a phone company might use these principles by choosing eco-friendly material for its products and finding ways to recycle old phones. In the fashion industry, a brand could design clothes to last longer, offer repair services, and recycle old garments. For a food company, social responsibility might involve ensuring fair wages for farmers, supporting local communities, and using ethical sourcing practices. In practical terms, these principles help companies reduce waste, conserve resources, and contribute positively to the communities and environment they impact. अब इसको उर्दू में जब मैं बताता हूँ तो वो ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स जो थी इंग्लिश में तैयार की थी वो ये थी कि अगर एक कंपनी फोन बना रही है ना, तो उसको ऐसा फोन बनाना चाहिए जो ड्यूरेबल हो, जिसकी लाइफ 5, 7, 8, 10 साल हो, और वो इसको ऐसा डिजाइन भी करें कि जब वो बिल्कुल सत्यानाश उसका हो जाए, उसको हम रिसाइकिल करके दोबारा कुछ बना लें। ठीक है? अगर हम किसी उसकी दूसरी जो इंडस्ट्री की बात, कपड़े की इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उस इंडस्ट्री को चाहिए कि वो एक तो ऐसे मटेरियल को दे यूज़ करे जो तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, उसको डैमेज ना करे, और उसको रिपेयर किया जा सकता हो, और जब वो रिपेयरिंग के हद से भी निकल जाए, हम मज़ीद रिपेयर ना कर सकते हो, तो उसको रिसाइकिल करके कुछ और ओल्ड गारमेंट्स से कुछ नया बना दिया जाए। अगर किसी फूड कंपनी की भी बात करते हैं, तो अगेन उनको क्या चाहिए कि वो जिन किसानों से चीज़ें ले रहे हैं, उनको अच्छे कीमत पे करें। जिस जगह पर उन्होंने अपना प्लांट लगाया हुआ है, उस जगह को, उसकी कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करें। वो जो वर्कर्स हैं उनके पास काम करें, उनके साथ अच्छा काम करें। तो ये है वो चीज़ें जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप वेस्ट कम करेंगे, आप रिसोर्सेज़ को सेव करेंगे फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और आप पॉजिटिवली अपना हिस्सा डालेंगे किस चीज़ के अंदर, कि हम कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ द रोल ऑफ इनोवेशन इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। देखिए, इनोवेशन के बगैर आप तरक्की तो कभी नहीं कर सकते। हम जहाँ आज खड़े हैं, वी वर नॉट हियर अराउंड 50 years ago, and even just 20 years before, nobody can think that we could call video, we can have a video call and we can see anyone standing in the next corner of the world. So same here in the sustainability. In sustainability, innovation is a driving force, reshaping how we address environmental and social challenges.
It optimizes resources use, foster eco-friendly product design, and people the shift to renewable energy. Smart technologies enhance supply chain sustainability, while circular business models promote products reuse and recycling. This innovation extends beyond the environmental issues addressment. It's also address the social challenges through fair trade practices and inclusive business models. Overall, innovation is the key to balancing economic growth with environment and social well-being. तो यहाँ पर हमने आपको यही बताया कि देखें आप ऐसा करें 20 साल पीछे चले जाएं तो सिर्फ फ्रिज का कंसेप्ट था कि फ्रिज होनी चाहिए, मगर जो फ्रिज बना रहे थे मैन्युफैक्चरर था वो ये नहीं सोच रहा था कि मेरी फ्रिज जो है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि अगर लाइट चली गई तो ये चीज़ों को कितनी देर ठंडा रखेगी। मगर आज जो बंदा रेफ्रिजरेटर या फ्रिजेस को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको ये सोचना पड़ेगा। वो सोच रहा है, मतलब जो ओल्ड एसीज़ लगे हुए हैं, अगर किसी के पास लगे हुए हैं, इन्वर्टर नहीं है, आप उनका कंजम्पशन चेक करें। और जो आज एसी लगे हुए हैं, जो इन्वर्टर मेरे पास लगा हुआ इको फ्रेंडली का है, उसका कैनवुड का, तो मेरा बिल जो है उस एसी के ऊपर जो मीटर पे है वो 3500 5000 मैक्सिमम 5000 तक गया, इससे ऊपर गया ही नहीं। तो अगर वो कोई पुराना एसी लगा हुआ होता, तो ये बिल कम से कम 15-20 हज़ार को गया हुआ होता। तो क्या है कि इनोवेशन ज़रूरी है। हमें सोचना ज़रूरी है भाई कि हमें कम से कम पावर कंज़्यूम करनी है, ताकि हम प्लैनेट को सेव कर सकें। हमें कम से कम रिसोर्सेज़ यूटिलाइज़ करने हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज़ बच सकें। हमें कम्युनिटीज़ को उठाना है, ताकि सब बंदे खुश हो सकें ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की 98% जो हमारी वेल्थ है, वो 2% लोगों के पास है और बाकी जो 98% लोग हैं उनके पास सिर्फ 2% वेल्थ है। यानी कि 2% लोग 98% चीज़ों पे काबिज़ हैं और वो उसको शेयर करने को तैयार ही नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग। दिस इज़ सिंपली अ सेल्फिश काइंड ऑफ फैक्ट। लोग इतने खुदगर्ज़ कैसे हो सकते हैं? अभी तो हम सस्टेनेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, एक वर्ल्डली एक थ्योरी कह लें, एक फीचर है या एक सोच है लोगों की। हमें हमारा दीन ही इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरीके से जो है ना रिसोर्सेज़ पे काबिज़ हो जाएँ। हमें बताया जाता है कि आपको ख्याल रखना है, ये आपकी तरफ एक इम्तिहान है, बट यहाँ क्या हुआ, लोग उसके ऊपर अपनी मलकियत बना के बैठ गए। सो दिस वाज़ इट ऑल अबाउट। सो नेक्स्ट थिंग इज़ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ फॉर इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी। तो क्या है कि हमें लोगों को बताना है कि भाई प्रैक्टिकली आपको क्या करना है और कैसे करना है। उनको बताना है कि सिर्फ़ कपड़ा शर्ट नहीं बनानी है, शर्ट ऐसी बनानी है कि वो लंबी चलेगी, वो अगर खराब होगी तो रिपेयर हो सकती होगी और अगर रिपेयर नहीं हो सकती होगी तो उसको दोबारा हम ऐसे साइकिल से गुजारेंगे कि दोबारा प्रोडक्ट बन जाएगा। उसको हमें लोगों को बताना है एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड ओवरकमिंग बैरियर्स। सो ऐसा नहीं है कि मतलब इट इज़ एज़ सिंपल लाइक एबीसी, चैलेंजेस विल बी देयर। हमें ये कहना है कि फेसिंग चैलेंजेस एंड ओवरकमिंग बैरियर्स इज़ वाइटल फॉर मेकिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वर्क। वन बिग चैलेंज वन वन ऑफ द बिग चैलेंजेस द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग विद सस्टेनेबल वेज। मतलब हमें पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, R&D करनी पड़ेगी सस्टेनेबल के लिए, तो उसके ऊपर इनिशियली कॉस्ट अगर होगी, तो क्या है कि ये एक चैलेंज है। उसको किसी ना किसी तरीके से एड्रेस तो करना है, तो हमें उनको सॉल्यूशन देने हैं कि जो चैलेंज आ गया है उसका सॉल्यूशन ये है। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट अगर हाई हो गई है या इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल पे बन रही है, तो उसका हमारे पास जो है सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं हम, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो टोटल रिक्वायर्ड लोड है वो 25,000 मेगावाट है, मगर जो हमारे पास करंट कैपेसिटी है वो 40,000 मेगावाट की है, बट वो कैपेसिटी सारी फ्यूल के ऊपर और कोयल पे खड़ी की हुई है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि तकरीबन आज से 20 साल पहले का सर्वे है कि इन द साउथ रीजन ऑफ पाकिस्तान इन द थर डेजर्ट हमारे पास विंड टरबाइन्स लगाकर 40,000 मेगावाट पैदा किए जा सकते हैं। बट नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दैट बिकॉज दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट अ पीस ऑफ मीट दे कैन गेट, लाइक वो अपने पाव गैस के लिए पूरा कट्टा हराम करने पे तुले हुए हैं। बट हमें एड्रेस करना है। एंड द थर्ड थिंग इज एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ कोलैबोरेशन इन सस्टेनेबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मिलजुल के काम होगा। मैं भी कोई तीस मार खान नहीं हूँ और आप भी कोई तीस मार खान नहीं है। तो हमें क्या करना है, लोगों को कहना है भाई मिल के बैठो। हमें डिफरेंट जो फील्ड्स हैं जितने भी हैं उनमें से एक्सपर्ट्स को उठाना है, उनको इकट्ठे बैठाना है, उनको प्रॉब्लम समझाना है। वी वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट सो दिस इज समथिंग सीरियस, वी नीड देयर हेल्प, दे हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, दे हैव टू कम अप विद सर्टेन न्यू आइडियाज, new ideas for the sustainable solutions. So this was it. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है जनाब, अगली स्लाइड में हम बात करेंगे
मॉड्यूल 2 के ऊपर. सो इन मॉड्यूल 2 सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिजाइन प्रिंसिपल्स. In this module, we will explore how to design products that are not just stylish and functional, but also kind of the environment friendly. We will discover the principles that guide us in creating a positive impact through thoughtful product design. So हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिजाइन की बात करेंगे. सो हम उसमें क्या कह सकते हैं, हम बता सकते हैं कि मेकिंग प्रोडक्ट्स इन अ वे दैट इज गुड फॉर द प्लेनेट इज इम्पोर्टेंट. हमें ऐसी ही चीजें बनानी हैं जो कि हमारे जो है प्लेनेट के लिए, हमारे अर्थ के लिए अच्छी हैं. Sustainable products design means using material that are kind for to environment, thinking about the whole life of the product and using less energy. हमें ऐसा environment मटेरियल यूज करना है जो environment friendly भी और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी भी, कम से कम एनर्जी भी यूज करनी है ताकि हम चीजों को बेहतर बना सकें. The role of design in product life cycle sustainability. Very simple. So the way product is designed is really important for how good is it is for earth. When designers use eco-friendly material and smart ways to make things, it make the product more sustainable. Sustainable design think about the whole life of the product from when it is made, when it is thrown away. It helps to make products that last a long time, can be fixed if they are break, they can be recycled. This kind of design is important for the environment, and it's what many people want. It's a big part of making products in a way that responsible and good for the future. तो बड़ी सादी सी बात है, जब आप डिजाइन करने बैठ गए तो इतना सिंपल काम नहीं है. आपको हर एस्पेक्ट को कवर करना है, कोई भी चीज खाली नहीं छोड़ सकते. उसके बाद डिजाइन डिसीजंस लिंक टू एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट्स. डेफिनेटली अगर आपका डिजाइन का डिसीजन गलत हो गया और तो आप मतलब सस्टेनेबल हो ही नहीं सकते. सो देयर इज अ क्लियर लिंक. So understanding this link between design decision and their broader impact is essential for creating products that are not only functional and aesthetically pleasing, but also environmentally sustainable and socially responsible. Like for example, if अगर हम बात करें तो what can I say? For example, opting for eco-friendly materials and energy-efficient manufacturing reduces the product's carbon footprint. Like जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयल का प्लांट भी लगा सकते हैं, हम विंड टरबाइन भी लगा सकते हैं. सो नाउ इट्स द डिजाइनर्स जॉब कि जो ये सोचने के लिए बैठा हुआ है कि आई नीड एनर्जी, वो किस तरफ को मूव करेगा. सो दिस इज द लिंक, हियर इट इज. नेक्स्ट थिंग इज इको डिजाइन strategies. Eco design principles. Eco design follows three main principles: materials, energy efficiency, and recyclability. It focuses on using environment friendly materials like those that don't harm nature. Energy efficiency means making things that use less energy, which is good for the planet. Lastly, recyclability ensures the product can be recycled instead of being thrown away, reducing waste. By following these eco design principles, products become more sustainable and less harmful to the environment. Second is examples of products applying eco design strategies. कोई ना कोई एग्जांपल भी होनी जरूरी है. Okay. So think about your reusable water bottle or the LED light bulbs at home. These products are designed with the environment in the mind. The water bottle is made to last for a longer period, using materials that can be recycled, reducing the need of single-use plastic. LED light bulbs are energy efficient, helping you save electricity and cut down on emissions. Some companies make furniture that can be easily rearranged, like a sofa cum bed, something like that. So these are all the examples of a process that is helping us in saving the environment and designing the sustainable products. The third thing is the importance of a circular design approach. Like we have talked about circular economy in the previous slides. Like we don't want to work on the lean model, like resource पकड़ा, product बनाई, इस्तेमाल किया और फेंक दिया. हमें close loop पे जाना है. हमें ऐसा काम करना है कि जो चीज बना दी गई है वो जब बिल्कुल भी सत्यानाश होकर खत्म हो जाए तो भी उसके साथ कुछ बन जाए. Just a minute, please. So a circular design. Okay. A circular design approach is really important. Instead of making things to use once and throw away, it focuses on creating products that can be reused, repaired and recycled. तो हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा
जैसे हमारे पास जो है इस वक्त एनवायरनमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है ना, आप देखें ई वेस्ट जिसको एक नाम दिया गया है, ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रिकल वेस्ट जो जनरेट हम कर रहे हैं उसके साथ कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे पाकिस्तानी भाई इतने खुश हो रहे हैं ना कि हम लैपटॉप वहां से उठा के ले आते हैं, उनके पास लैपटॉप की लाइफ ही 3 साल है, वो 3 साल के बाद उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो वो उस वेस्ट को वहां से खत्म करने के लिए वो उसको शिप में डाल के पाकिस्तान भेज देते हैं, और हमारे लोगों ने यहाँ उसका एक बिजनेस खड़ा किया और हम बड़े खुश हैं कि हम सस्ते में लैपटॉप लेके आ गए। एक्चुअली में वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ले जाओ, साड़ी जान बख्श दो। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। We need to think about it. We need to develop strategies. We need to work on them. So next thing is about human-centered design and social impact. So introducing human-centered design principles. So human-centered design is all about making things that really work for people. We start by watching and listening to them, learning what they need and like. Then we use that understanding to create things that are not just useful but also easy and enjoyable to use. We keep testing and getting feedback to make sure our design fit well with how people live and what they want. It's not just about looks, it's about making things that fully connect with the people who use them. इसका मतलब ये है कि हमने पीछे बहुत शोर मचाया कि जनाब आप अच्छे रिसोर्स अच्छा इथिकल सोर्सिंग करें, आप अच्छा डिज़ाइन करें, आप उसको रिसाइकल और ये वो सब कुछ दिमाग में रखें। बट अब वो बात क्या आ रहा है कि सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट अबाउट जस्ट सेविंग द एनवायरनमेंट, इट्स अबाउट द पर्सन जो जो पैसे लगा रहा है, जो किसी चीज़ को लेने गया है, अगर वो एक चीज़ लेके आया और वो चीज़ उसका काम ही नहीं कर रही, तो वो क्या करेगा? इट्स ऑफ नो यूज़ ना। तो हमें एक ऐसी चीज़ बनानी है जो सस्टेनेबल हो, अच्छी बात है, बट वो उस बंदे का पर्पज़ भी सर्व करे। मतलब मैंने क्या करना रिसेंटली कुछ अरसा पहले की, रिसेंटली तो नहीं, इट वाज़ अराउंड 5 इयर्स अगो, इन 2018, इट वाज़ इन 2018 कि मुझे एक कंपनी के लिए कुछ चीज़ें बाहर से चाइना से इंपोर्ट करनी थी, तो उन्होंने मुझे ये, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये हार्नेस चाहिए, तो कितने में आप देंगे? उन्होंने कहा जी कि आपको यही हार्नेस कितने में चाहिए? यानी कि अगर मुझे $10 में चाहिए, मुझे 20 में चाहिए, मुझे 50 में चाहिए, दे हैव ऑल द थिंग्स टू प्रोवाइड दैट हार्नेस इन द गिवन रेट। या मैं ऐसे कहूँगी मुझे सेम हार्नेस $10 में दे दो, वो दे देगा। वो करेगा क्या? वो ऐसी चीज़ें, ऐसा डिज़ाइन यूज़ करेगा, ऐसी इसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ करेगा, वो ऐसा यूज़ कर देगा जो जो है अपना काम ही नहीं करेगा। अगर अल्लाह ना करे वो बंदा लटका, तो वो उसको सस्टेन नहीं करेगा, वो गिर जाएगा नीचे। उसकी लाइफ थोड़ी होगी, मतलब वो 6 महीने के बाद हो सकता है उसकी सलाइयाँ उधर के खत्म हो जाएँ। सो दिस वाज़ इट अबाउट कि हमें चीज़ें ऐसी बनानी है कि वो बंदा जिसने पैसे लगाए हैं, उसको उतनी उसकी वैल्यू भी मिले। The second thing we will be discussing is exploring the social impacts of product design. So exploring the social impact of product design is when we talk about designing products, it's not just about how they look. We need to think about how they affect people and communities. Social impact in product design means making things that everyone can use easily, no matter their abilities. It's about being fair to workers, creating products that benefits communities, and making sure everything is safe. Like जैसे आज मैं ड्राइव कर रहा था, तो मुझे कॉल करनी थी, तो अब इतना तो मुश्किल था कि मेरे मोबाइल में को 1500 कॉन्टैक्ट था, उसमें से एक बंदे को कॉल का नंबर ढूँढना गाड़ी चलाते हुए मुश्किल था। तो मैंने सिंपली उसके माइक पे हाथ रखा, उसको कह दिया कॉल टू दिस पर्सन, तो दिस इज़ इट, मेरा काम हो गया। वो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक्सप्लोरिंग द सोशल इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स डिज़ाइन, तो हमें देखना है कि द थिंग वी आर अबाउट टू डिज़ाइन और वी आर अबाउट टू मैन्युफैक्चर और वी आर अबाउट टू प्रोड्यूस should be working for everyone, no matter what kind of abilities they have or what kind of abilities they don't have. Like एक सेल फोन ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी ब्लाइंड आदमी के हाथ में भी है ना, तो उसे वॉइस कमांड से कुछ कर सकता हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब वो आपने सेल फोन बना दिया है, अब उस बंदे को जो है ना वो नजर नहीं आता, तो वो उसको यूज ही ना कर सकता हो, या उसके हाथ अगर प्रॉपर टच नहीं कर पा रहा है, तो उसका भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स कि आपको सोचना है कम्युनिटीज़ के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, उनकी वेजेस के हिसाब से, उन छोटे बिज़नेस वालों को ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है इस आइडिया के अंदर। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो आप एक्चुअली वो जो एक अनफ़ेयर डिवीज़न है ना वेल्थ की, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी कुछ टाइम पहले कि पाकिस्तान की 98% वेल्थ 2% लोगों के पास है। उसकी वजह ये है कि वो इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे काबिज़ हैं। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ मोनोपोली।
तो वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं और मर्जी के रेट पे बेच रहे हैं। अगर आप कम्युनिटी का सपोर्ट करेंगे, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे, जो छोटा बिजनेस वाला है उसको ऑन बोर्ड कर लेंगे, उसका माल ले लेंगे, तो वो जो एक अनफेयर डिवीजन ऑफ वेल्थ हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजर्स एंगेजमेंट। Okay, very simple. Talking to the people who will use a product is really important in design. It means designers understand what user needs to like and like. This helps to create things that are not just useful but also enjoyable for the people using them. यानी कि इसके अंदर हमें ख्याल ये रखना है कि मैंने प्रोडक्ट डिजाइन करनी, तो ऐसा नहीं कि मैं अपने कमरे में बैठूं और जो मेरा दिल किया, जैसा दिल किया वो बना के भेज दूं, चलो जी पकड़ो यूज करो। अब हम जिस वक्त में जिंदा है वहां ऐसे नहीं चलने वाला है। हमें उनकी से लेनी है। वी नीड टू आस्क देम एक्चुअली व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक, व्हाट दे नीड, व्हाट मैटर्स, व्हाट नॉट मैटर्स। सो इस तरीके से एक चीजें हैं जो हमें उनसे फीडबैक लिए बगैर नहीं मिल सकती हैं। सो हमें सीधा सीधा जाके प्रोडक्ट नहीं बना देनी है, हमें मार्केट में उतरना है, हमें उनसे पूछना है। और जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस वक्त भी ये ख्याल रखना है कि जो फीचर्स मैंने बना के भेज दी हैं, अगर कल को इसके अंदर मुझे कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ अपग्रेड करना है, तो ये मेरी प्रोडक्ट उसको सपोर्ट भी कर रही हो। अगर ऐसा हुआ कि मैंने एक प्रोडक्ट बना दी, उसमें ना तो कुछ चीज डाली जा सकती है ना निकाली जा सकती है, तो फिर तो वो आपने सस्टेनेबिलिटी का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि वो तो अगर वो इस्तेमाल में नहीं आएगी या वो ऑब्सोलीट हो जाएगी या वो ओल्ड फैशन हो जाएगी, तो फिर लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे। बट अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो अपग्रेड हो सकता है, लाइक आप ऐसा सेलफोन तैयार करते हैं जिसका कैमरा चेंज हो सकता है, आज उसके अंदर लगा हुआ है 60 मेगापिक्सल का, कल को मार्केट में अगर 200 मेगापिक्सल आता है, तो आप उसको एक्सचेंज चेंज कर सकते हो। आप जो पुराने वाला उसको निकालें, नया लगा लें, तो क्या आपका पूरा सेलफोन तो बच गया ना। बट अगर आपने एक ऐसी चीज बना दी है जिसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर तो बहुत खतरनाक काम है। अगर कल को ट्रेंड चेंज हो गया, कल को नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपका बनाया हुआ तो सब सत्यानाश है। तो सस्टेनेबिलिटी का प्रोग्राम तो खत्म हो गया। सो द नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबल डिजाइन इनटू डेवलपमेंट। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबल डिजाइन इनटू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमें प्रैक्टिकल चीजों को देखना है। सिर्फ बुक्स के अंदर लिखने से, प्रोसेस बनाने से, रिपोर्टें बनाने से, आर्टिकल लिखने से गुजारा नहीं होने वाला है। हमें प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा। हमें लोगों को बिठा के समझाना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, उनकी राय लेनी पड़ेगी, फिर चलेगा। नेक्स्ट थिंग इज एम्फसाइजिंग क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने क्या किया कि मुझे एक प्लांट लगाना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर पकड़ लूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पकड़ लूँ तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। हमें उसके अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियर भी चाहिए जो बताएगा जो आप बना करने वाले हैं उसके साथ क्या होगा। हमें वहाँ पे एचएससी एक्सपर्ट भी चाहिए जो बताएगा भाई कि जो तुम लोग ऑन बोर्ड करोगे उन लोगों को यहाँ पे ये खतरे होंगे। हमें वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव का एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा भी चाहिए जो बताएगा कि भाई तुम जो शुरू करने वाले हो उसमें ये चीजें चाहिए होंगी, वरना लोगों को ये मसले मसाइल निकल आएंगे। तो हमें एक क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की जरूरत है चीजों के लिए। हम किसी भी चीज को सिंगल हैंडेडली एक जगह पे बैठ के बना देंगे तो वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकती है। लास्ट थिंग इज इन दिस स्लाइड इज अबाउट एड्रेसिंग चैलेंज एंड फोस्टिंग इनोवेशन। अगेन हम वहीं पर आ गए कि देखिए चैलेंज होगा, पर हमें उसके लिए इनोवेशन के साथ जाना है। हमें अच्छे डिजाइन, नए डिजाइन लेकर आने हैं। हमें उसके अंदर चीजों को ऐसा बनाना है जो बेहतर हो जाए, जो काम भी करें और अपना लोगों का ख्याल भी रखें। तो मॉड्यूल 3 भी आ गए। सो मॉड्यूल 3 सप्लाई चेन कंसिडरेशन। We will explore how products journey impact the environment. Let's understand the steps that matter for sustainability. So I hope you are ready. Let's dive in. तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी। Supply chain sustainability is critical for reducing environment's impact, minimizing waste, and lowering carbon emission. Ethical labor practices and social responsibility enhance workers' well-being and community development. Economically, it leads to cost saving, market access, and increased competitiveness. Now, let's tease the upcoming discussion by giving you a glimpse into the key considerations. So key considerations include, we will be exploring that shortly. These are not just abstract concepts, but they are actionable elements that can transform the way we approach and manage our supply chain. So stay tuned. Let's start. First thing is environmental impact assessment. It's very interesting and a very important topic in the sustainability subject. So
The need of assessing the environment impact. Why we need to assess the environment? Why we need to make a environment impact assessment (EIA) report before starting any project, or what? Why it is very important? So assessing the environment impact is essential in understanding how our action affect the planet. By evaluating the consequences of our decisions, we can identify areas of improvement, implement sustainable practices. This process involves considering factors such as resources use, waste generation, carbon emission. Understanding the environmental impact allows for informed decision making, guiding the adoption of eco-friendly alternatives and practices. It is a crucial step in fostering responsible and sustainable behavior. So the next thing is the method of evaluating the environmental footprint. So checking how much our actions affect the environment involves different methods like life cycle assessment, looks at the product entire life for making it or to throwing it away. Carbon and ecological footprint focus on emissions and overall impacts. Environmental impact assessment check how specific project affects the environment. Tools look like environmental product declarations, share information about product environmental impact. These methods help us. Actually, they help us in understanding how much we use resources and how it affects the planet. They guide us in making choices that are good for the environment. And the next thing is the importance of the transparency. So transparency is it's very important. Without transparency, without transparently communication, without transparently informing people, we are not going to get to the destination we want to be. So actually transparency is crucial because it fosters openness and honesty in our action and communication. In various contexts, whether in business, governance, or personal relationship, transparency builds trust. When information is clear and accessible, it enables informed decision making in organization. Transparent practices contribute to the positive and accountable culture, fostering employees' satisfaction and loyalty. Additionally, in area like environmental impact or product labeling, transparency allows consumers to make choice aligned with their values. Overall, transparency is the cornerstone of the integrity and accountability, creating a foundation of ethical behavior and positive relationship. So, we were talking about कि जब आपने प्रोडक्ट बना दी है, तो आपको उस पर लेबल लगाना है. तो जब उस पर आप लेबल लगा रहे हैं, तो उस वक्त जरूरी है कि आप जो इन्फॉर्मेशन उस पर दे रहे हैं वो सही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप जो है पीछे अपनी मर्जी से जो आपका दिल कर रहा है वो कर रहे हैं. मगर जब आप लेबल बनाने जा रहे हैं तब आप जो है उसके ऊपर अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके बेच देते हैं, तो ये भी गलत हो गया. या ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्या किया है कि आप पीछे कुछ कर भी रहे हैं मगर आपने जो लेबल पे लिखा है वो ठीक ही नहीं लिखा. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो कर रहे हैं उसको लोगों को बताएँ और ट्रांसपेरेंटली बताएँ. ताकि अगर वो कोई चीज़ चूज़ करना चाहते हैं, तो इट्स देयर फंडामेंटल राइट कि उनकी क्या वैल्यूज़ हैं. वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहना चाहते हैं, वो फेयर पीपल ट्रीटमेंट को देखना ज़्यादा जो है देखना चाहते हैं। तो वो जिस तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं, अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से चीज़ों को ले सकें, ताकि निज़ाम चलता रहे। सो एथिकल सोर्सिंग एंड फेयर लेबर प्रैक्टिसेस के ऊपर बात करें, सो द सिग्निफिकेंट ऑफ एथिकल सोर्सिंग। तो इस पे हमने पहले भी बात की कि एथिकल सोर्सिंग इज सिग्निफिकेंट एज इट इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विद इंटेग्रिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी थ्रू आउट द सप्लाई चेन बाय प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स। तो इन सब चीज़ों पे ऐसा है कि जब आप सोर्सिंग पे जाना है तो ऐसा नहीं है कि अपने मनपसंद लोग रखे हुए हैं, उनको आपने जो है ना प्रोजेक्ट देना है, उनको उनकी मर्जी के पैसे देने हैं, उसके अंदर से किकबैक्स लेनी है। तो आपको ऐसा काम नहीं, सोर्सिंग इथिकल रहनी चाहिए। मतलब ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने को ज़रूरी है कि जो सबके लिए काम करें और सेम काम करें। सेकंड इज़ फेल लेबर प्रैक्टिसेस इन द सप्लाई चेन। लेबर फोर्स नहीं करनी चाहिए, किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे हमने शायद फर्स्ट सेशन जो था उसमें भी बात की थी कि अगर सऊदीया के अंदर किसी यूरोपियन को ऑन बोर्ड करना हो ना उन्होंने, किसी न यूरोपियन सिटीज़न को या कैनेडियन को, तो उनके पास बड़े अच्छे पैकेजेज़ हैं। बट अगर उन्हें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका का कोई बंदा ऑन बोर्ड करना है, तो उनका बजट खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। द थर्ड थिंग इज़ एग्ज़ाम्पल्स ऑफ कंपनीज़। उसमें एग्ज़ाम्पल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मैंने कल बड़ी सर्च की ना, तो हमें एशियन और गल्फ कंट्रीज के अंदर से मुझे कोई एग्जांपल ही नहीं मिल सकी जिसको मैं कोट कर सकूं. सो आई हैव टू राइट दिस लाइक
Patagonia, IKEA. Patagonia is known for its commitment to sustainable and ethical sourcing. The company prioritizes fair labor practices, use recycled materials, and promotes environment conservation. IKEA जो है ये एक पेपर की कंपनी थी मेरे ख्याल से, yes. So IKEA has committed to sourcing woods from sustainable and responsibly managed forests. यानी कि वो उन जंगलात से लकड़ी लेते हैं जहाँ पे सिर्फ काटी नहीं जा रही है, उसको वो जितनी काट रहे हैं उसके इक्वली उसको पूरा करने के लिए लगा भी रहे हैं। तो वो वहाँ पे काम करते हैं। आके द बॉडी शॉप के साथ भी ऐसे ही है, वो अपनी जो चीज़ें बनाते हैं ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड जो आइटम्स बनाते हैं, उसके अंदर वो जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली करते हैं, अच्छी करते हैं, जो इंसान की सेहत के लिए, उसकी जल्द के लिए खराब नहीं नुकसानदेह नहीं है। और नेस्ले की अगर हम बात करते हैं तो नेस्ले अपनी फेयर प्रैक्टिसेस के ऊपर पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। तो सप्लाई डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, ये है द concept of supply diversity. Supply diversity is a strategy where business actively choose a variety of suppliers, especially those owned by individuals from underrepresented areas. यानी कि इसके अंदर वो बात कर रहा है कि हम ऐसे लोगों को ऑनबोर्ड करते हैं जिनको बड़े लोग नहीं ले रहे, जिनके पास बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं है। नॉर्मली जो हमारे पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो जब सप्लायर भी लेने जाती हैं तो वो बड़ा हाई लेवल हाई फाई पकड़ती हैं ताकि ना उनको कुछ करना ना पड़े। तो सस्टेनेबिलिटी की ये रिक्वायरमेंट है कि आप किसी नॉर्मल बंदे को लें और उसको डेवलप करें, उसको पढ़ाएं, उसको एजुकेट करें, उसे सपोर्ट करें, उसको उठा लें। मैं उसकी एग्जांपल पाकिस्तान से जब देता हूँ तो मैं ये देता हूँ कि आप नस्ट की बात करें, हमारे पास नस्ट यूनिवर्सिटी है जी, उसका बड़ा नाम है। वो करते क्या है, 90% मार्क्स वाले 12,000 एप्लीकेशंस लेते हैं और उसमें से 200 सिलेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि नस्ट ने बड़ा टैलेंट जो है ना प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस तुम लोगों ने खा किया है, तुम लोगों ने पहले वो चीज पकड़ी थी जो ऑलरेडी आसमान पे लगी हुई थी। उठाओ ना वो बच्चा जिसने 60% मार्क्स लिए हैं, 70% लिए, 80% लिए, उसको 100% पे लेके जाओ और फिर हमें बताओ कि वी डिड समथिंग। बट नहीं, हम पहले से क्रीम रेडीमेड उठाएंगे और अपना ठप्पा लगा के कहेंगे जनाब ये हमने बनाया था। एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम हियर। द सेकंड थिंग इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिविटी इन द सप्लाई चेन। Inclusivity in supply chain is crucial for fostering a fair and equitable business environment. By embracing a diverse range of suppliers, businesses can tap into a broader pool of ideas, perspectives, and innovations. This inclusivity not only strengthens the relationship with the varied suppliers based, but also contributes to the economic empowerment of underrepresented groups. It aligns with principles of fairness and social responsibility, demonstrating the commitment of creating opportunities for businesses owned by minorities, women, veterans, and other inclusive supply chain that are more resilient and adaptive. तो यहाँ पर बात ये कि ये बहुत जरूरी है। पहले तो हमने आपको पिछले पॉइंट पे ये बताया कि आपको डाइवर्सिफिकेशन पे जाना है, किसी एक पे रिलाई नहीं करना कि यार एक ही बंदा पकड़ूं वो हमें सारी चीज दे दे। आप ऐसा करें, बेहतर है कि 5-6 बंदे ले रहे हैं जो आपको चीजें जो एक बंदे से लेते हैं वो 5-6 से लेंगे, तो पहले वो सारे पैसे एक बंदे की जेब में जा रहे हैं, फिर वो 5-6 पे जाएंगे। अब वो ये कह रहा है यहाँ पर आके आपसे कि भाई अब आप क्या करें, एम्पावर करें जो लोग क्रॉस बॉर्डर भी अगर पड़े हुए हैं, उनके पास उनका जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो उनका स्किल सेट है वो एक दूसरे से अलग है। अब डाइवर्सिफिकेशन को जाएं, इनको पकड़ें, इनको साथ इकट्ठा बिठाएं, उससे चीजें बेहतर हो जाएंगी। और आखिरी चीज है द बेनिफिट ऑफ डाइवर्स सप्लायर बेस। बेनिफिट बड़ा क्लियर है कि देखें, वो कहता है 2 पेयर ऑफ आइज आर बेटर देन 1। अगर आप सिर्फ अपने ऊपर रिलाई करके बैठ गए कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, जैसे नोकिया में मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो सेल फोन बनाने वाला केस था उसके साथ हुआ कि उसको जाके उसने एंड्रॉइड का आइडिया दिया बंदे ने कि जनाब मेरे माइंड में ये आइडिया है, उन्होंने कहा तुम हमें बताओगे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो आपको सेल फोन मार्केट में नोकिया नजर नहीं आ रहा, दे हैव अपस्लेटेड। दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, कि हमें ऐसा नहीं करना है कि बस सोच लिया कि मैं जिस डब्बे में बैठा हूँ मैं इसका बादशाह हूँ, बाहर से कोई नहीं आ सकता। हमें हाथ खोलना है, लोगों को ऑनबोर्ड करना है और उनकी डाइवर्स उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका नॉलेज है, उसको यूज करना है। आखिरी मॉड्यूल है ये रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर होगा। एंड हमारे पास मिनट भी थोड़े, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जितना अच्छे तरीके से बयान कर सकूं वो होगा। So regulatory compliance and standards. In this module, we will delve into the world of rules and certifications that guide our sustainability efforts. So देखते हैं क्या है। So सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हमें the importance of adhering to regulations, हमें कानून की जो बात माननी है, जो अतात जो फर्मा बरदारी करनी है, वो क्यों अहम है। वैसे पाकिस्तान में तो कुल मिला के सत्यानाश है, बट स्टिल वी विल डिस्कस इट। तो
Following regulations is vital because these rules act like a guidebook, showing us the right path to sustainability. Just as we follow traffic rules for safety, adhering to environment and social regulations ensure that our actions are responsible and beneficial. यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई जो कानून होता है एक्चुअली तो ऐसा ही होता है, किसी भी आइडियल वर्ल्ड के अंदर जो कानून है वो आपको हेल्प करने के लिए होता है। वो आपको हिंडर नहीं करता, वो आपको टीज़ नहीं करता, वो आपको रुलाता नहीं है। वो आपको गाइड करता है, वो आपको सपोर्ट करता है। तो सेम वो कहता है कि एक्चुअली यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो एनवायरमेंटल की गाइडलाइंस बनी हैं, जो सोशल रेगुलेशंस बनी हैं, वो आप ही लोगों के लिए बनी हैं। अगर आप उस पे काम करेंगे तो जो हमारे जो चीज़ें हैं वो अच्छी चलती रहेंगी, हम ऑब्सोलीट नहीं होंगे, हम खत्म नहीं होंगे, हम लोगों के दिलों में जगह बनाने में सक्सेसफुल हो जाएँगे और चीज़ें बिल्कुल साफ-सुथरी चलेंगी विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। और दूसरी चीज़ है रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड्स। So regulatory compliance standards are essential aspects of ensuring that businesses operates within the legal and ethical frameworks set by governance bodies. So compliance involves following rules, laws and regulations applicable to the specific industry or region, and standards on the other hand refer to establishing criteria or benchmark that define quality, safety and performance expectations. तो रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन कहती है जो वहाँ का कानून कहता है और स्टैंडर्ड क्या है? वो एक बेंचमार्क सेट करता है कि दीज़ आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू कैन अडॉप्ट एंड इफ यू अडॉप्ट वी विल सर्टिफाई यू कि आप इस स्टैंडर्ड पे कंप्लाई हैं। उसके हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे अभी। एनीहाउ द फर्स्ट थिंग इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ रेगुलेशंस अफेक्टिंग बिज़नेसेस। Businesses have to follow a lot of rules, and these rules cover many areas. There are laws about how employees should be treated, how the environment should be protected, how the taxes should be paid. Businesses need to ensure their products are safe for the consumer. They cannot discriminate against people. They also have to be careful with personal data and follow rules about financial reporting. Laws about health and safety at work, trade relations, and protecting ideas एंड इन्वेंशंस आल्सो प्ले अ बिग रोल। यहाँ पर हमने यही बात की है कि हमें जो है बड़ा ख्याल करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी चला रहे हो, हमें देखना है कि हम जिस एरिया में दुनिया के जिस हिस्से में काम कर रहे हैं, वहाँ के कानून के साथ हमारी कंप्लायंस है, हमारी कंप्लायंस बिल्कुल ठीक चल रही है। हम जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं, हम जो डाटा बता रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो टैक्सेस देने थे, हमारे जो रिटर्न्स हमने फाइल करने थे, वो हमने फाइल कर रहे हैं। तो हमें ये सब चीज़ जो है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद हमें जाना है द ग्लोबल एंड रीजनल वेरिएशंस। सो देयर आर वेरिएशंस सो ग्लोबल एंड रीजनल वेरिएशंस रेफर टू द डिफरेंसेस and similarities in regulations, practices and cultural aspects that exist on the whole worldwide and more localized scale. जैसे आप अगर ईयू की बात करते हैं, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी एक अपनी काउंसिल है। यूके चले आप ब्रेक्सिट करके, तो वो ब्रेक्सिट होने के बाद अलहदा से एक अपनी एंटिटी बना के बैठ गए। ऑस्ट्रेलिया एक अलहदा निज़ाम है, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। मगर इन सब स्टैंडर्ड्स में ऐसा नहीं कि सब कुछ ही मुख्तलिफ है। देयर आर सिमिलैरिटीज़ एंड देयर आर डिससिमिलैरिटीज़ एज़ वेल। तो वहाँ पर चीज़ें एक जैसी भी हैं, एक जैसी नहीं भी हैं, मुख्तलिफ हैं। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जो एक जैसी हैं, गुड प्रैक्टिसेज़ हैं, उनको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, उन्हें हमें शेयर करना है क्रॉस द बॉर्डर। और जो मतलब एक जैसी नहीं है मगर उस स्पेसिफिक रीजन की हैं, उनको वहाँ पर हमें उन पे अमल करना है। और आखिरी चीज़ है द नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। इट्स वेरी सिंपल कि द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड्स इज क्रूशियल फॉर बिजनेस टू ऑपरेट एथिकली, रिस्पांसिबिलिटी एंड सक्सेसफुली। इट इन्वॉल्व्स नोइंग एंड अडहेरिंग टू द रूल्स। बड़ी सीधी-सी बात है कि भाई आपको क्या पता चला कि हम ISO 45000 सर्टिफाइड हैं, सर्टिफिकेट मिल गया आपको। मगर आपको एक्चुअली पता ही नहीं है कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ था। बड़े-बड़े सीईओ जो है ना, वो मैंने मीटिंग में बैठे देखे हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या बला है या जो हम टूल बॉक्स टॉक करते हैं वो क्या बला है। तो देयर इज़ द नीड ऑफ समवन हू नोज़, जिसे पता है कि भाई क्या स्टैंडर्ड है क्वालिटी का, क्या स्टैंडर्ड है एनवायरनमेंट का, क्या स्टैंडर्ड है HSE का। तो हमें वो लोग पकड़ के लाने हैं कि जो जिनको पता है वो हमें गाइड करें और हमारे बिज़नेस को एक सही ट्रैक पर रखें, जिससे हमारा काम चलता रहे। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लायंस के ऊपर हम बात करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। Following rules and regulations is really important for business. It keeps them on the right side of the law, avoiding legal problems, financial losses,
फिर देखिए इसकी मैं अभी अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैंने एक चैनल जो है ना सब्सक्राइब किया हुआ है यूकेएचएससी का, तो उसके वो आई बल्कि ओशा के जो आईओएस के मेंबर हैं उनको भी एक ईमेल आती है कि वहां पर मिलियंस पाउंड्स का फाइन ऐसे ही हो जाता है छोटी सी गलती पे। मतलब खैर हमें छोटी लगती है बीइंग अ पाकिस्तानी, वहां पे छोटी नहीं है भाई। यानी कि अगर आपने वहां पर आपका कोई एम्प्लॉई ऐसा पकड़ा गया जो किसी खतरे में था, उसकी जान जा सकती थी, तो हो सकता है आपका बिजनेस तबाह हो जाए, क्लोजर हो जाए। यहाँ पाकिस्तान वाला खाता नहीं है कि 2-4 लाख दे के चला लेंगे, वहां पे सत्यानाश होने वाला। तो इट इज सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी कंप्लायंस, ऐसा नहीं कि आप इसको करेंगे या ना करें, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स नेसेसरीली इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड थिंग इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आप भाई काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो बिजनेस क्लोज होगा, फाइन्स होंगे, लोग आपको साथ बिजनेस ही नहीं करेंगे। तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है। सो नेविगेटिंग स्टैंडर्ड्स इन सस्टेनेबिलिटी के अंदर हमारे पास जो है की स्टैंडर्ड्स वो हैं 14001, 19001 एंड वी हैव 45001। तो सच एज अगर हम ISO 14000 की बात करते हैं, दिस इज अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। It gives us the benchmark standards, the regulations, the ways we can protect the environment. ISO 9001 is a quality management system. It's about the quality of the product. It's about the process. It's about the life cycle. And if we talk about the 45001, it's about the people working on the product. हमें इन चीजों को ख्याल रखना है, ये हमें बस समझाते हैं, गाइड करते हैं। The role of certification in sustainability. So certifications are important for sustainability by setting clear guidelines and standards for businesses. Achieving certification like ISO 14001 and Fair Trade boost business credibility and show its commitment to sustainability. अगर हम मतलब जैसे कहते हैं ना, इंसाफ सिर्फ होना चाहिए, नजर भी आना चाहिए, तो आप सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस सिर्फ कर ही ना रहे हो, उनकी कोई एविडेंस भी होना चाहिए। तो आपके पास सर्टिफिकेशन होने का मतलब ये है सर्टिफिकेट का कि आप अच्छी प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ अडहेरिंग द स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि फूल के साथ कांटे होते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड के साथ काम कर रहे हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली। अडहेरिंग टू स्टैंडर्ड इज गुड फॉर बिजनेस बिकॉज इट बूस्ट क्रेडिबिलिटी एंड इंश्योर क्वालिटी। मीटिंग a rising benchmark helps gain customer trust and allow entry into specific markets. It also improve operational efficiency and customer satisfaction. However, challenges include the cost of implementation, adapting to evolving standards. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया है, बेनिफिट आपको मिलेंगे, आपने सर्टिफिकेट ले लिया है तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके साथ चैलेंजेस आएंगे, आपको उसके ऊपर कॉस्ट आने आएगी, आपको उसके ऊपर लोग ऑनबोर्ड करने पड़ेंगे, आपको उसके ऑडिट करवाने पड़ेंगे, आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ेगी, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे कुछ गलत हो गया तो आपको कोर्ट भी जाना पड़ेगा। ओके, अब हम हमारे पास 5 मिनट रहते हैं और हम पहुंच गए हैं रिकैप तक। So, as we finish our session today, let's quickly go over what we have learned in module 1 to 4. We started by understanding the basics of product sustainability. Then we went deeper into how to design products in the sustainable way. And we also looked at the complexities of supply chain and finally dived into the importance of following rules and standards. It's important to see how all these things connected. Your part in making things sustainability is really important. The things you have learned today will help you be a leader who take responsibility for making our world better. Keep these things with you on your journey in the world of sustainability. So, participant reflection. So, now I would like to turn the floor over to you. What reflection do you have from today's session? And please, finally, आखिरी 2 मिनट के अंदर माइक अनम्यूट करें। कुछ तो बताएं कि जो सेशन हमने रन किया इसमें क्या था, कुछ था या कुछ भी नहीं था, या बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था, या इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सेशन बहुत जबरदस्त था, क्योंकि मैं खुद बतौर एज एनवायरमेंटल मैनेजर काम कर रहा हूँ और सस्टेनेबिलिटी फील्ड बिल्कुल 360 डिग्री में मुख्तलिफ है एनवायरमेंट से। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? इंशाल्लाह बहुत बहुत जबर बिल्कुल जी, बिल्कुल ज्यादा बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम समझ रहे थे कि मतलब इतना फर्क नहीं होगा, मतलब 19-20 का होगा, लेकिन माशाल्लाह ये तो बिल्कुल 360 डिग्री में बिल्कुल मुख्तलिफ है जी एनवायरमेंट फील्ड से। मैं एनवायरमेंटल मैनेजर काम कर रहा हूँ नियम में, लेकिन ये बिल्कुल ये जो चीजें अच्छा, बिल्कुल ना हमने पढ़े ना देखे जी। बहुत जबरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स?
मैं ये समझूं कि बहुत बुरा था, लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं 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 जी, ऐसा नहीं है जी। नहीं नहीं, बाकी देखे ना, बाकी भी बैठे, मैं चाह रहा था कोई और गुस्सा ही कर लेता है, चलें गुस्से से कहता है ठीक है यार नहीं अच्छा था, पर नहीं कहा किसी ने। अस्सलाम वालेकुम, चलें जी। अच्छा था, हमें कुछ सीखने को मिला। वालेकुम तो प्लीज अस्सलाम बस जी आपका ज़ियाफत भाई। रिकॉर्डेड सेशन है वो शेयर कर, तो मजीद इंशाल्लाह हम इसको रिव्यू कर लेंगे, तो वो जो है ना हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा। थैंक यू, चलें ठीक है, थैंक थैंक यू यू। वेरी So call of action, because हमने कुछ सीखा तो there is the call to action. So as we wrap up, let's consider our call to action. Each of you plays a crucial role in applying sustainability principles within your respective spheres. I encourage you to take these learnings beyond the session and incorporate them in your daily practices. Sustainability is the journey, and your commitment makes a significant impact. So before we conclude, I want to express my sincere gratitude for your participation and thoughtful contribution. A small one, but still it was a contribution. Thank you, and I am excited about the positive change you will bring to your organizations and the communities. Let's stay connected and inspire the sustainability journey. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू, Thank थैंक you, यू, everyone. Thank you, everyone. थैंक यू। ये भाई जो थे साथ ही थे, हाँ।